approaching toward the metal, they are not approaching exactly from the axis. Alright, so that means what? It is very simple. The ligands having their lobes along the axis, they are going to get stabilized, but the ligand having the lobe 45 degree off the axis, they are going to get destabilized. That's it. समझो, 3 लिगेंड ऊपर हैं, 3 लिगेंड नीचे हैं, बीच में क्या है? मेटल. अगर मैं इसको रोटेट करके आपकी तरफ कर दूं तो आपको सिर्फ क्या दिखेंगे? 3 लिगेंड, क्योंकि पीछे वाले 3 लिगेंड एक दूसरे को क्या करेंगे? सुपर इम्पोज, जो मैं यहाँ पे बोल रही थी. So this kind of geometry is called trigonal prismatic geometry. Hey everyone, welcome back to Chemical Serendipity. So in the last lecture we had done the crystal field splitting diagram of various geometries, alright, and there was a question I had given to you, that was the dodecahedron. That was simple, alright. I have answered that in the comment section of that particular lecture. You can go there and check it out, that whether you were right or wrong, alright. So today we are going to start with a very important part of crystal field theory, and that is going to be that on what factors that splitting is going to depend. Because in some cases you will find the splitting will be very high, in some cases it will be very low, in some cases it will be intermediate. So on what factors it is going to depend on, alright. Before doing that particular topic, I am going to discuss 2 terms that are usually used while studying the crystal field theory. So let's find out that what are those 2 important terms. So let us consider any ML6 octahedral complex. ठीक है? We know that how the crystal field splitting is going to happen if octahedral crystal field is going to form. We know that, alright. For example, this will be the spherical crystal field. Then there will be destabilization of your Eg and stabilization of your T2G if this is your barycenter. Consider another case. Let us say this is the spherical crystal field of another complex. Let us say this is your M-L-6. So let us say this is destabilization Eg, this is stabilization T2G, barycenter, and this we know that is Dalo because this is octahedral. This is also Dalo for this octahedral complex. So in one case the splitting is small, in another case the splitting is high. So let us say that this metal is having D4 electron. I don't know about the metal, it is not a specific case, but let us assume that the number of electrons in these orbitals are 4. So let's find out that how these orbitals, these electrons are going to sit in these orbitals. Let's find out. So how I'm going to put these electron in the orbital. 1, obviously ये lower energy का है तो पहले इसी में जाएंगे 1, 2, 3. Similarly यहाँ पे भी मान लो D4 है तो कैसे होगा 1, 2, 3. अब 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? 4th इलेक्ट्रॉन क्या पता यहाँ आए या फिर 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाए. ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं जब तुम करते हो, क्योंकि तुम रूल लगाते हो ना जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हो ऑर्बिटल में, सब पहले सिंगली फिल्ड होना चाहिए, देन तुम पेयरिंग करना स्टार्ट करते हो, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे विद द अपोजिट स्पिन. यू ऑल नो अबाउट दिस बेसिक्स, ऑलराइट. सो कहाँ पे हम 4th इलेक्ट्रॉन को रखेंगे? दिस 4th इलेक्ट्रॉन, लेट अस कंसीडर ये तुम हो और तुमको कहीं पे पहुँचना है. अब वहाँ पे पहुँचने के लिए तुमने क्या किया? बस लिया, बस में तुम चढ़े, बस में तुमने देखा कि एक सीट है वहाँ पे, मतलब जो नज़दीक की सीट है वहाँ पे एक एक बंदा बैठा हुआ है. तो तुम क्या करते हो? तुम क्या करोगे? और लेकिन पीछे वाली सीट्स खाली है तो सबकी टेंडेंसी क्या रहती है कि भैया आराम से जो वेकेंट सीट है वहाँ पे बैठेंगे, है ना, जब भी तुमको जर्नी पे जाना है तो. ठीक है, तो तुम क्या करोगे? वहाँ पे नहीं बैठोगे जहाँ पे कोई बैठा है, तुम फटाफट से थोड़ा सा ही आगे दूसरा सीट खाली है, तुम वहाँ जाके बैठ जाओगे बस में. अब मानो तुम जर्नी कर रहे हो ट्रेन में. ट्रेन में सारा जो सबने एक एक सीट ऑक्यूपाई कर लिया है, उनके साथ वाला सीट जो है वो अवेलेबल है. मान लो तुम चेयर जो क्लास है ट्रेन उसमें तुम जा रहे हो तो उसमें एक एक सब ऑक्यूपाई है. बाकी तुमको ये पता चलता है कि एक सीट है पूरी वेकेंट लेकिन वो लास्ट वाले कंपार्टमेंट में है. तो तुम क्या करोगे? तुम उसको छोड़ के लास्ट में जाओगे? नहीं, क्योंकि वो दूर है. तो तुम क्या करोगे? वहीं एडजस्ट कर लोगे जहाँ पे तुम अभी एंटर कर रहे थे.
तो कहने का मतलब क्या है कि अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तब तुम वहाँ थोड़ा ना जाओगे, तुम अगर कोशिश करोगे वहीं पे एडजस्टमेंट हो जाए, तो वही ये इलेक्ट्रॉन करेगा। अगर ये स्प्लिटिंग कम है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे क्यों एडजस्ट करेगी, जब स्प्लिटिंग कम है उससे कम ही काम करना पड़ेगा, तो वो जाके आराम से यहाँ बैठेगा इस ऑर्बिटल में। बट इस केस में ये क्या देखेगा कि भाई बहुत काम करना पड़ेगा क्योंकि ये स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा है, तो वो वहाँ ना जाके यहीं पे एडजस्ट कर लेगा। ऐसा ही होगा ना, समझ गए ये बात। तो देखो जिनमें ये स्प्लिटिंग कम हो उसमें जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वहाँ पे क्या होती है, पेयरिंग नहीं हो रही है, और जिसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा है वहाँ पे क्या हो जा रही है, पेयरिंग। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ़ ये कब पॉसिबल होगा, इफ़ पेयरिंग एनर्जी इज़ हायर देन डेलो। डेलो वैल्यू कम है इसीलिए ऊपर जा रहा है, तो दूसरी तरीके से भी समझो कि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है। देखो पेयरिंग एनर्जी का मतलब क्या हुआ, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, अगर नॉर्मली देखो स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड में क्या होना था, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो ऐसे जाने थे ना, बट ऐसे तो होगा नहीं क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऐसे बनेगा ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे। तो तुम इसको जो 4th इलेक्ट्रॉन है उसको ज़बरदस्ती इसके साथ क्या कर रहे हो, यहाँ पे पेयर कर रहे हो, वही हुआ ना, पेयरिंग एनर्जी चाहिए होगी बिकॉज दिस इज़ लाइक तुम उसको वैसे करना पड़ रहा है ये बनाने के लिए, ठीक है। तो पेयरिंग एनर्जी का मतलब हुआ कि कितना एनर्जी लगेगा उसको पेयर करने के लिए। तो अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो तो पेयर नहीं होगा, वो दूसरे ऑर्बिटल में जाके बैठेगा अकेला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये कब होगा केस, व्हेन पेयरिंग एनर्जी इज हायर देन योर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी विल बी लो। बट इफ योर पेयरिंग एनर्जी इज लेसर देन डेलो, मतलब डेलो जो है बहुत हाई है तो पेयरिंग एनर्जी क्या है उससे कम है, तो वो क्या कर लेगा, पेयर कर लेगा। अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो पेयर नहीं करेगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बोल दिया जाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है जिसकी वजह से पेयरिंग नहीं हो रही है, और इसको बोल दिया जाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे पेयरिंग एनर्जी कम है जिसकी वजह से वो पेयर होना ज़्यादा प्रेफर कर रहा है इन कंपैरिजन टू अलग से ऑर्बिटल में बैठना। वेरी सिंपल ना। तो बस में तो फटाफट से क्या करोगे, 7 वाली सीट खाली है वहाँ चले जाओगे, बट ट्रेन में भाई लास्ट कंपार्टमेंट में कौन जाएगा, वहीं पे एडजस्ट कर लो, वहीं पे तुम क्या करोगे, बैठ जाओगे। तो बस यही हो गया तुम्हारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब बहुत ज़रूरी है ना ये जानना कि ये कब हाई होगी और कब लो होगी, कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करेगा, तो वो जानते हैं। तो देखो मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि किस किस फैक्टर पे तुम्हारी वो स्प्लिटिंग जो है वो डिपेंड करेगी। अगर तुम्हें पता है कि उस स्प्लिटिंग के होने का रीज़न क्या है, क्या रीज़न था बोलो, क्या पढ़ा था हमने, बेसिक क्या पढ़ा था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, कि मेटल है, लिगेंड को हम क्या मान के चल रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट चार्ज, और वो क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है मेटल को, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो रही है, इंटरैक्शन हो रही है, यही पढ़ा था हमने। अब देखो अगर लिगेंड और मेटल के बीच का डिस्टेंस कम हुआ, मतलब मेटल और लिगेंड जो है वो बहुत अच्छे से ओवरलैप कर रहा है, इंटरैक्शन बहुत अच्छी हो रही है, तभी मेटल लिगेंड बॉन्ड कम होगा। तो अगर इंटरैक्शन अच्छी हुई तो क्या करेगा, जो लिगेंड है अगर मेटल के पास है, इंटरैक्शन अच्छी हो रही है, तो वो उसके ऑर्बिटल्स को ज़्यादा पर्टर्बेट करेगा। यही हो रहा है ना, डीजेनरेसी, जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं जो कि आपके डीजेनरेट थे, उसको क्या कर रहा है, वो तोड़ रहा है डीजेनरेसी को, पर्टर्बेशन हो रही है डी ऑर्बिटल्स में, क्योंकि क्या हो रहा है, दोनों का एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है। ठीक बात। अब क्या है मतलब कि जिन कॉम्प्लेक्सेस में मेटल लिगेंड में अच्छी इंटरैक्शन होगी वहाँ पे क्या होगा, स्प्लिटिंग भी ज़्यादा होगी, क्योंकि पर्टर्बेशन ज़्यादा कर पाएगा लिगेंड मेटल के ऑर्बिटल्स को। समझ की बात, बस इतनी सी बात समझनी है। तो पहला इम्पॉर्टेंट जो तुम्हारा फैक्टर है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। अच्छा, एक सबसे गलत एक परसेप्शन हम लोग बना के चलते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग, फटाफट से हमें पता होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अच्छा फटाफट लिगेंड देखने हैं और बता देना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड, यही पढ़ते आए हो ना। बट नो, हाउ कैन ओनली द लिगेंड विल बी रिस्पॉन्सिबल? It is the interaction between the metal and ligand both, all right. So there will be a very important factor that will depend on the metal, all right. So what is the effect on the oxidation state of metal? बोलो,
अगर मैं बोलूँ कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इंक्रीज हो रहा है, खुद ब खुद सोचो, तुम्हें आता है ये, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल है, हाई है, ठीक है, बढ़ रहा है, हाई है, इसका मतलब क्या है, साइज क्या हो रहा है, स्मॉल, साइज स्मॉल हो रहा है तो लिगेंड के साथ इंटरेक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल पे बढ़ रही है, तो लिगेंड क्या आएंगे, क्लोज, लिगेंड क्लोज आएंगे तो स्प्लिटिंग भी क्या होगी, हाई. So if your positive oxidation state of the metal increases, that means your Dallo value is going to increase. समझ गए ये बात? Positive oxidation state of the metal increases, then Dallo value is going to increase because there will be more interaction of your metal ion and your ligand, and that's why the ligand is going to perturb those d orbital more. That is why the splitting is going to be more. All right? ठीक है भाई. Second, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या आ गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है आपका n, जो क्या बताता है अबाउट द ऑर्बिटल साइज एंड द एनर्जी लेवल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n. तो इसको एग्जांपल से पढ़ो कैसे होगा, जैसे मैं तुमको बोल रही हूँ 3D है, 4D है, 5D है, ट्रांजिशन मेटल में 3D सीरीज का मेटल है, 4D सीरीज का मेटल है, 5D सीरीज का मेटल है, बोलो किस में स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा होगी, बोलो. तो क्या देखेंगे, 3D से 4D से 5D में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग. तो जो आउटर मोस्ट शेल है मेटल का, जो कि क्या करेगा, जो वैलेंस शेल है जो कि लिगेंड के साथ इंटरैक्ट करेगा, देयर विल बी अ बेटर ओवरलैपिंग, देयर विल बी अ बेटर इंटरैक्शन. व्हाई? बिकॉज द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ दीज 4D एंड 5D इज गोइंग टू बी वेरी मच लेस कंपैरिजन टू 3D. क्यों? क्योंकि Z इफेक्टिव क्या होता है, बोलो, Z माइनस एस, पढ़ा है ना. तो S क्या होता है तुम्हारे पास, शील्डिंग कांस्टेंट, और Z क्या होता है तुम्हारे पास, पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ऑलराइट, तो तुम्हें पता है ये और ये, तुम्हें शील्डिंग इफेक्ट के बारे में पता है ना. तो शील्डिंग इसका क्या होता है, जैसे जैसे n वैल्यू बढ़ेगा शील्डिंग क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, शील्डिंग कम हो जाएगा तो Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो मतलब Z इफेक्टिव क्या होता है, नेट पॉजिटिव चार्ज दैट इज फेल्ट बाय योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ऑलराइट, इज द शील्डिंग ऑफ द positive charge, that is Z, due to the protons, shielding of positive charge by the core electrons. All right, that is felt by the valence electron. So this is very simple. दोबारा देखो, 3D, 4D, 5D में सबसे ज़्यादा इंटरैक्शन क्या करेंगे, 5D ज़्यादा करेगा, then 4D, then 3D. क्यों ऐसा होगा, बिकॉज ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट. शील्डिंग इफेक्ट ऑफ दीज टू इज कंपैरेटिवली लेसर देन दैट ऑफ द 3D. That is why the Z effective will be higher. That is why it is going to interact with the ligand more, and there will be more perturbation, there will be more splitting. So this Dallo value will be higher for 5D, then for 4D, then for 3D. मतलब तुम्हें लिगेंड सेम दिख गया, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम दिख गई, और लेकिन सारे जो कॉम्प्लेक्सेस के मेटल है वो डिफरेंट सीरीज से बिलोंग करे, तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि जो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिस 5n, दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका हाई होगा उसकी डैलो वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा. इफ n इज हाई देन डैलो वैल्यू विल बी हाई. दिस इज द सेकेंड फैक्टर. फैक्टर में नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, मतलब जब तुम कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स सेल मान लो MlN, N प्लस कुछ भी है ना, तो जब तुम ऑक्सीडेशन स्टेट लगा के इसके देखते हो डी इलेक्ट्रॉन्स को, वो डी इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है मेटल के, तो ये तो खुद ही बता दो, शील्डिंग और ये सब इफेक्ट पड़ा. तो अगर डी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, डी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, डी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो शील्ड तुम्हारा स्प्लिटिंग क्या होगी, कम होगी, क्योंकि क्या होगी, रिपल्शन होगी. डी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो लिगेंड के साथ अच्छे से क्या करना, इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी, इसलिए स्प्लिटिंग भी क्या होगी, कम होगी. ये कहाँ पे लेकिन कंपेयर करोगे, अगर सेम ही सीरीज़ की बात हो रही है, मतलब अगर 3D सीरीज़ के मेटल आयन की बात हो रही है. अच्छा, जैसे मतलब समझो, एग्जाम्पल समझो, अमीन कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन, सबकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट पे तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते हम. अदरवाइज अगर किसी की +3 होती, किसी की +2, किसी की +1, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे मत देख लेना, इसका चार्ज मत देख लेना, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे. मैं इसीलिए बोल रही हूँ यहाँ पे क्योंकि ये हमारे क्या है, न्यूट्रल लिगेंड. ठीक बात. तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे तो आप कुछ नहीं बोलोगे. ठीक है, अब देखो तुम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो क्या है. कोबाल्ट किसको बिलोंग करता है, 3D को. रोहोडियम सेम सीरीज में किसको बिलोंग करता है, 4D को. इरिडियम 5D को. तो फटाफट बोलो क्या होगा,
ये जो है वो उसकी सबसे ज़्यादा क्या होगी, स्प्लिटिंग. इफ दिस इज योर ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दैट मीन्स द डालो बी विल बी हायर देन बी देन ए. समझ में आ गया क्यों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ये वाला क्वेश्चन देखो, ए ये है, बी ये है. पहले क्या देखोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट. ये क्या है, न्यूट्रल. ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों क्या है, +2, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट वाला तो नहीं लगाएंगे. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलो, दोनों ही किसको बिलोंग करता है, 3D को, मतलब ये वाला भी नहीं. अब क्या देखोगे, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन. कैसे बोलो, ये क्या है, कोबाल्ट +2 और ये क्या है, Fe+2. कोबाल्ट +2 मतलब D7, Fe+2 मतलब D6. तो जिसमें नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं वहाँ पे क्या होगा, स्प्लिटिंग कम होगी. तो ऐसा नहीं है हमेशा सिर्फ पहले लिगेंड पे देखो. ऑब्वियसली देयर विल बी इफेक्ट ड्यू टू बोथ ऑफ देम, मेटल ऑल्सो एंड लिगेंड ऑल्सो. मेटल में क्या क्या देखोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का, मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स एंड in the periodic table where your metal is belonging. All right, so all of these factor is going to contribute a lot I am saying, because if you are talking about the principal quantum number, no, so when you are going from 3D to 4D, this splitting is going to increase by 50%, and from 4D to 5D it increases 25%. So these are the factors. Now the fourth factor, which is a well known factor, is the effect of the ligand. तो ligand में if complex forming is your high spin, then the ligand forming that high spin complex is known as weak field ligand. Means the ligand which is not capable of doing the pairing of electron is said to be the weak field ligand, because in that case the complex is going to form will be high spin. समझ गए बात? And if complex is low spin, that means the ligand is strong field ligand. कौन सा हाई स्पिन बनाएंगे, कौन सा लो स्पिन बनाएंगे, कौन से वीक है, कौन से स्ट्रॉन्ग है, वो देख लो. सो वो हमें पता चलता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो देखो ये बनाई कैसे गई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी करी गई अलग अलग लिगेंड्स के साथ. फिर देखा गया किसमें हाई स्पिन बन रहा है, किसमें लो स्पिन बन रहा है, उसको मतलब दे फाइंड आउट यूजिंग द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स. ऑलराइट, कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो इसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स, अलग अलग लिगेंड्स है. तो हम क्या करेंगे, साथ साथ में तुम नाम लिखते जाओगे, क्योंकि तुम्हारी एक तरीके से रिविजन हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा था कितने कितने अलग तरह के लिगेंड्स होते हैं, कैसे उनका हम नाम नेमिंग करते हैं. ठीक है, तो वो हम करते जाएंगे और तुम राइट डाउन करते जाओगे क्या है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. I नेगेटिव, Br negative, S2 negative, SCN negative, N3 negative, nearly same is for NO3 negative, Cl negative, F negative, OH negative, C2O4 2 negative, O2 negative, H2O. Then you have NCS negative, GLY negative, PY NH3, EN SO3 negative, bypyridine, orthophenanthrolin, NO2 negative, CH3 negative, C6H5 negative, PR3, CN, CO, CN, NO, CO. This is your spectrochemical series. अब नाम देख लेंगे सबके. आइडो ब्रोमो, दिस इज सल्फाइडो, this is thiocyano, you know that. This is nitrido, this is nitrato, chloro fluoro hydroxo oxalato, oxo aqua,
This is isothiocyanato, glycinato, pyridine, ammonia, because O was used anionic. This is your neutral, pyridine, ammonia, ethylene diamine, sulfito, ethylene diamine, bipyridine, orthophenanthroline. This is nitrito. This is your methyl phenyl trialkyl phosphine, cyano nitrosyl carbonyl. तो जिनको इन लिगेंड्स के बारे में नहीं पता है कि इसमें से कुछ तुम्हारे क्या हैं, बायोडेंटिएट हैं, इनके नेम्स क्या, इनकी डेंटिसिटी है, तो ये मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ. यू कैन चेक दैट पर्टिकुलर लेक्चर वेयर वी हैव डिस्कस्ड द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर. Now out of these series, see from your IDO, that is I negative, to your water, these all are weak field ligand. इसलिए मैंने इसको एक लाइन में लिखा. आइडो से लेके वाटर तक दे ऑल आर वीक फील्ड लिगेंड. दैट मीन्स ये लिगेंड होंगे तो आपके कौन से कॉम्प्लेक्स, किस तरह के कॉम्प्लेक्स बनेंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. समझ में आ गया क्या है हाई स्पिन, क्या है लो स्पिन? ठीक है. अब देखो जो ये बीच में लिखे हैं इनको बोला जाता है इंटरमीडिएट लिगेंड, इंटरमीडिएट फील्ड लिगेंड. मतलब कभी इट डिपेंड्स. अभी ये भी मैं आपको कुछ रूल्स, कुछ ऑब्जर्वेशंस एंड में हम लिखेंगे कि कब स्ट्रॉन्ग फील्ड एक्ट करते हैं, कब वीक फील्ड एक्ट करते हैं, लेकिन इसको अभी हम कैटेगराइज कैसे करते हैं? वीक फील्ड लिगेंड में. इसके बाद इथिलीन डाइअमीन से लेके CO तक दे आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. मतलब ये होंगे तब तो हमेशा ही क्या बनने वाले हैं? आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. मतलब क्या हो जाएगा? पेयरिंग हो जाएगी. इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिटल में नहीं जाना प्रेफर करेगा. So these are the strong field ligand, these are intermediate field ligand and these are the weak field ligand. अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि इसको याद कैसे करेंगे. मैंने भी याद as such, of course it is not possible, it is not easy to memorize these type of things. So you know that देखो वैसे भी हमने मेमोराइज इन दैट वे, सिर्फ इसको मेमोराइज करके कुछ होना भी नहीं है. बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट द लिगेंड, दिस इज़ अबाउट द मेटल ऑल्सो. इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, इट्स डी इलेक्ट्रॉन, इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दोज फैक्टर्स ऑल्सो. देन this factor come at the end, that is the type of the ligand. All right, now in order to memorize this I have a mnemonic. So whenever in your chemistry, because और भी लेक्चर्स में तुम देखने वाले हो, समटाइम हमको देखना पड़ता है क्योंकि इनको सीरीज़ को हमें मेमोराइज करना पड़ता है in order to solve the questions. So I have a mnemonic and that was given by my professor and now I am sharing that with you guys so that it will be somehow it will be easy. So it is like I about, so पहले लिख लो then I will explain. I about some special nylon cloth from collecting oxygenated water near Gita Palace among each so big plant, no chair properly connected. देखो अब क्या क्या बोला है. तो जो भी आपका कैप्स में है, कैपिटल लेटर्स में है, वो आपका बेसिकली लिगेंड को दिखा रहा है. तो दिस इज योर आई, दिस इज बी, बॉट some special nylon, N basically is here describing both of these ligands. Nylon cloth, C is for this chloro, from F negative. This OH negative खुद से याद कर लेना. हाँ, कुछ बना नहीं यहाँ पे तो ये बीच में आएगा, मतलब तुम्हारे फ्रॉम और कलेक्टिंग के, तो इतना तो कर ही लोगे. तो OH negative, then C is for your collecting. Then oxygenated is for oxo, O2 negative. Water is your aqua.
near, N is for NCS negative, Geeta, glycine, G, okay. Palace, P is for pyridine, among means ammonia, so ammonia is for this. Ethylene diamine, each, E is basically for ethylene diamine, so SO, alright. Big, B is for bipyridine. Phenanthroline, P, orthophenanthroline, no, NO2 negative. Chair में जो CH है ना, this is describing basically those ligands having carbon and hydrogen, so CH3 negative and C6H5 negative. Properly, P is for PR3. Connected देख लेना, ये तीन तो याद ही रहते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है CN, NO, CO. So this is your spectrochemical series and this is the mnemonic that will help you to memorize this series, because of course it is very important, because आपको ऐसा नहीं आएगा because जैसे तुम CSIR या गेट एस्पिरेंट्स की इसमें से लो स्पिन हाई स्पिन बताओ, बहुत रेयर चांसेस हैं, बट आपको आएगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालना, या उस पर क्वेश्चन आएगा प्रॉपर, है ना, न्यूमेरिकल, तो उसमें अब इसमें टाइम लगाओगे कि कौन सा लो स्पिन है कौन सा हाई स्पिन है, तो टाइम कहाँ रहेगा उसको सॉल्व करने के लिए. सो दिस इज इंपॉर्टेंट इन दैट एस्पेक्ट. ऑलराइट, so this is your spectrochemical series. Now at the end let us summarize whatever we had done in points, and there are some star points that you need to know basically while doing these type of questions, that what complexes are low spin, what complexes are high spin. किसी भी complex की configuration D1, D2, D3 and D8, D9, D10 होगी, तो ऐसे में अगर कोई पूछ सकता है तुमसे कि हाई स्पिन बनेगा या लो स्पिन बनेगा, D1 हुई तो कोई मतलब ही नहीं है ना, ऑक्टाहेड्रल ले लो, जैसे D1 मतलब यहाँ रहेगा, D2 यहाँ, D3 यहाँ, D4 होगा तब बात आएगी ना कि वो 4 कहाँ जाएगा, समझ में आ गई. तो इनमें तो कोई बात ही नहीं है पूछने की हाई स्पिन है लो स्पिन है, तो तुम आंखें बंद करके तुम, वो है ही नहीं हाई स्पिन लो स्पिन की कैटेगरी में, है ना. D8, D9, D10 में भी होगा. D8 क्या होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसमें भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, जैसे ऐसे ही होना था फिलिंग. 9 यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता है, एक ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 9 पक्का ऊपर जाएगा, 10 आगे जाएगा, तो इन कॉन्फ़िगरेशन में तो सवाल ही नहीं उठता पूछने का कि लो स्पिन बन रहा है या हाई स्पिन बन रहा है. ठीक बात. सेकंड पॉइंट देखो, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में बोलो, एक बात बताई थी ना, टेट्राहेड्रल की जो डेल टीडी होती है वो हमेशा कम होती है किससे, ऑक्टाहेड्रल से, और बहुत अच्छे से हमने समझा था कि रीज़न क्या है. ऑलराइट, तो हमेशा देखो टेट्राहेड्रल की जो स्प्लिटिंग है वो कम है, इसका मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता हाई स्पिन बनेगा लो स्पिन बनेगा, वो इतनी कम है हमेशा ही, कोई भी चाहे लिगेंड हो कोई भी चाहे मेटल हो, बट इफ इट इज फॉर्मिंग अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स देन द कॉम्प्लेक्स इज सेड टू बी व्हाट, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. सो योर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमेशा कैसे होंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. उसमें भी हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो हाई स्पिन है या लो स्पिन है, क्योंकि उसकी स्प्लिटिंग हमेशा ही क्या होगी, कम होगी. सो दे विल ऑलवेज फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. तो जहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मिलेगा वहाँ पे हमें कुछ नहीं देखना, ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन या फिर ट्रांजिशन सीरीज. ऑलराइट, सो दिस विल बी हाई स्पिन ऑलवेज. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो 4D और 5D अभी बताया था, इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, हाई है, तो ये हमेशा ही क्या बनाएंगे, क्या बोला था उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में 50%, 25% बढ़ जाती है crystal field splitting. That means these two are always gonna form what kind of complexes, low spin complexes, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होगी splitting. तो इनके केस में भी देखने मत लगना तुम लिगेंड को या ऑक्सीडेशन स्टेट को, बस अगर मेटल तुम्हें दिख गई कि वो 3D नहीं है, वो 4D है या 5D है, तो कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ब्लाइंडली तुम बोल सकते हो कि वो क्या है, तुम्हारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. ठीक है बात. तो वहाँ पे इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट योर लिगेंड और अबाउट योर मेटल, इट इज़ म्यूचुअल, बट इन सम एक्सट्रीम केसेस वेयर वी ऑलरेडी नो दैट alright that splitting is going to be too much high, that means it is going to form low spin complex. ठीक है, तो इसमें टाइम नहीं लगाना है. 4D 5D means low spin complex, that's it. And 3D, what about 3D? अब देखो 3D अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब जैसे क्या बोल दिया +4, +5 एंड सो ऑन,
इतनी अगर पॉजिटिव हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हमने पहला ही पॉइंट किया था कि अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी तो क्या बनने हैं आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनने हैं, स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। तो 3D का मेटल हो और +4 +5 ऐसे सो ऑन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तब तो हमेशा ही क्या बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लेकिन क्वेश्चन कहाँ पे आता है कि 3D का मेटल हो लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट हो +2 +3, क्योंकि ये कुछ इंटरमीडिएट हो गया, हमें नहीं पता क्या होगा, है ना। और यहाँ पे भी कुछ इंटरमीडिएट लिगेंड है हमारे पास, तो इस पॉइंट को अच्छे से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। देखो तो इसको देखो, अगर 3D का मेटल हो और वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, मतलब क्या है, लो है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तब तो इस आइडो से लेके एमोनिया तक वो क्या बनाता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बस यहाँ से वो क्या बनाता है, इन लिगेंड के साथ वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एमोनिया तक वो क्या बनाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि खुद भी क्या है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वैरायटी नंबर ऑफ लिगेंड्स के साथ वो हाई स्पिन ही बनाना प्रेफर करेगा, लो स्पिन नहीं बना पाएगा, समझ गए। लेकिन 3D में ही थोड़ी सी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा दो, मतलब +3 हुई तो +3 हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी बढ़ गई तो स्प्लिटिंग बढ़ेगी ना, तो उस केस में क्या होगा, वो जो है हाई स्पिन बनाएगा आइडो से लेके वाटर तक, बाकी NCS से लेके CO तक वो क्या बनाने वाला है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। 3D +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में फॉर्म हाई स्पिन किसके साथ, I नेगेटिव, Br नेगेटिव, सो ऑन एमोनिया तक हाई स्पिन, बाकी सबके साथ आगे जो रह गए लो स्पिन। लेकिन 3D हो और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, इट विल फॉर्म हाई स्पिन I नेगेटिव, Br नेगेटिव, सो ऑन H2O, उससे आगे क्या बनाएगा, लो स्पिन। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है फॉर कोबाल्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो होना क्या चाहिए, 3D मेटल है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वाटर तक क्या बनाना चाहिए इसको, हाई स्पिन। लेकिन दिस फॉर्म हाई स्पिन अप टू OH नेगेटिव, OH नेगेटिव तक ये क्या बनाता है, हाई स्पिन। बाकी ऑक्सिलेट, ऑक्सो और एक्वा के साथ ये क्या बनाता है, लो स्पिन। तो गिव यू सम ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस एंड यू हैव टू टेल मी दैट विच वन इज हाई स्पिन, विच वन इज लो स्पिन, एंड दीज कॉम्प्लेक्सेस you should not use much time on these complexes. Firstly what you should do is, ये सारे जितने भी पॉइंट्स है उसको अच्छे से ध्यान से समझो क्या है, एंड देन आपके माइंड में कॉम्प्लेक्स को देखते ही आ जाना चाहिए हाई स्पिन है या लो स्पिन है। समझ गए बात, तो लिखो कोबाल्ट +3 एमोनिया के साथ बोलो, इंटरमीडिएट के साथ, सबके साथ। कोबाल्ट तो आपकी एक्सेप्शन थी, याद है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो कहाँ तक बनाएगी हाई स्पिन, सिर्फ OH नेगेटिव तक, बाकी सबके साथ क्या बनाएगी, लो स्पिन। कोबाल्ट +2 एमोनिया के साथ क्या करेगा, नहीं बनाएगा लो स्पिन, वो कहाँ तक आपका हाई स्पिन बनाएगा, एमोनिया तक, अप टू इंटरमीडिएट लिगेंड। तो दिस इज योर हाई स्पिन बिकॉज इट इज 3D। कोबाल्ट, नाउ व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान रखना यहाँ पे मत देखना, दिस इज योर नेगेटिव लिगेंड, सो दिस विल बी x - 6 इज इक्वल्स टू -4, x विल बी +2, सो दिस इज कोबाल्ट +2। कोबाल्ट +2 है, CN के साथ क्या बनाएगी, CN तो नीचे आ गए, साइनो, NO, CO, तो क्या बनाएगी इसके साथ, लो स्पिन। इरिडियम, कुछ देखने की जरूरत है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिगेंड, नो, इरिडियम मतलब लो स्पिन। कोबाल्ट +2, ये रिपीट हो गया, हाँ रिपीट हो गया, क्या बनेगा, हाई स्पिन। प्लैटिनम F6 +2, क्या बनेगा बोलो, प्लैटिनम, देखने की जरूरत है कुछ भी नहीं, दिस इज लो स्पिन। नेक्स्ट देखो Fe+2 एमोनिया के साथ क्या बनाएगा, 3D मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अप टू एमोनिया क्या बनाएगा, हाई स्पिन। Fe देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रखना, लिगेंड एनायनिक है, x - 6 इज इक्वल्स टू -3, x इज इक्वल्स टू +3, तो आयरन +3 और मतलब 3D मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में OH के साथ भी क्या बनाएगा बोलो, हाई स्पिन। कहाँ तक बनाता है ये हाई स्पिन, आपके +3 ऑक्सीडेशन में कहाँ तक बनाता है, वाटर तक। ओस्मियम देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्या है, लो स्पिन। कोबाल्ट यहाँ पे भी x - 6 इज इक्वल्स टू -4, x इज इक्वल्स टू +2, कोबाल्ट +2 3D, OH के साथ क्या बनाएगा, हाई स्पिन। कोबाल्ट
क्या बनेगा, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू -3, x इज इक्वल्स टू +3, कोबाल्ट +3, सोचने वाली बात है, स्टार पॉइंट था कोबाल्ट +3, लेकिन OH के साथ क्या बनाएगा, हाई स्पिन, उसके बाद से क्या बनाएगा, लो स्पिन। रुथेनियम देखने की ज़रूरत नहीं है, क्या बनेगा, लो स्पिन। रुथेनियम अगेन लो स्पिन, नो नीड टू सी द लिगेंड, नो नीड टू सी द ऑक्सीडेशन स्टेट। अगेन रहोडियम लो स्पिन, इतना इजी है। इम्पॉर्टेंट करेक्शन कर लेंगे, वो करेक्शन थी आपकी एक्सेप्शन वाली। क्या लिखा था हमने, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो इट फॉर्म हाई स्पिन विद I नेगेटिव, Br नेगेटिव, सो ऑन अप टू OH नेगेटिव। इससे पहले क्या आता है, F नेगेटिव। ये करेक्शन करेंगे भाई, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ गलती हुई है, देखो ये हाई स्पिन बनाता है नॉट OH नेगेटिव तक, ओनली F नेगेटिव तक। OH के साथ भी वो क्या बनाता है, लो स्पिन। इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे बिकॉज यहाँ एग्जाम्पल से आई केम अक्रॉस दिस एरर। सो अप टू फ्लोरो, अप टू F नेगेटिव तक वो क्या बनाता है आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, बाकी सबके साथ लो। तो उसके नेक्स्ट ही क्या है, OH, क्योंकि यहाँ पे OH वाले 2 एग्जाम्पल है इसीलिए। तो देखो तुम्हारे यहाँ पर कोबाल्ट +2 में था, तो +2 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने क्या देखा है कि आपका तुम्हारा एमीन तक क्या बनेंगे, हाई स्पिन। तो ये तो OH उससे पहले आ गया, तो ये करेक्ट है, हाई स्पिन। लेकिन यहाँ देखो ये क्या है, कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3, तो यहाँ से समझ में आ रहा है OH के साथ वो हाई नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, लो स्पिन। इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, कोबाल्ट वाला एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी है कि पूछ सकता है। सो याद रखेंगे कोबाल्ट +3 फॉर्म हाई स्पिन अप टू फ्लोरो, F नेगेटिव। द नेक्स्ट इज हाइड्रोक्सो, सो उसके साथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनाएगी, लो स्पिन। सो कन्फ्यूजन मत करना, +2 में अप टू अमोनिया, बट +3 में अप टू योर F नेगेटिव। After doing this particular, in the next lecture I am going to discuss with you the crystal field stabilization energy and what is the, which is very important because इस पे काफ़ी question आते हैं numerical form में, and then we are going to discuss the applications of crystal field theory, which is very important. All right, till then just revise these points, all right, and try to do questions so that to find out that whether you understood the concept nicely or not. Thank you so much for listening.